So good evening to all of you. My name is Ranjan Das, and today we're going to have a discussion, have a webinar on full stack data science using Python. So first of all, welcome to PythonSoft. So PythonSoft LLP is a software training and development company. We're situated at Khandagiri Square, Bhubaneswar, and basically our service is to provide uh, industry oriented training to the students and employees so that they can work in industries, because in software industry, what kind of coding, what kind of work is going on, a student must know, is because our education curriculum in colleges and what industry needs, they are totally different. Okay, so mostly in college curriculum we are following pro, so like theoretical, but in but here we are in like industry, it's more practical. So my point is that, so our aim is to fulfill that gap between colleges and industry. Okay, and nowadays you know that Python, data science, artificial intelligence, machine learning, these are very like high end technologies. These technologies are very popular nowadays. What is the reason behind it? Why they are used? What are the application areas? Why they are so much popular? And how you can make a career in data science or AI? Because nowadays it's a very good career. Nowadays entire world moves towards artificial intelligence, data science, machine learning. These are the like very demanded areas. So you must aware about that. And from very beginning, you must start your career. Normally, what my observation, what I found that most of the students are trying to prepare on the final year. Okay, in final year, they're trying to prepare in the final year to join any like job for getting job. But that's not the right way. You must prepare from the first year itself. Okay. So that in fourth year or when final year come, you are now you have sufficient skills, you have sufficient projects, okay, and so that you can join any industry, because it's a long time process. If you prepare from the day one, from first year, then easily you can get your like dream job, what you want. So that my point is how to prepare, how to choose your career, because lots of students are also confused to choose their careers. What they should learn, because normally what the traditional way of learning has been changed. जो ट्रेडिशनल लर्निंग था वो अभी नहीं है, जैसे पहले जिस तरह का जॉब था। आजकल टोटली देयर आर लाइक ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हाई टेक्नोलॉजीज, हाई एंड टेक्नोलॉजीज, तो उस तरह का मतलब आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। ओके, तो नॉर्मल वे में पहले आप लोग बहुत लोग सी पढ़ रहे थे, बहुत सारे कोई लैंग्वेज को मतलब बुरा नहीं बोलो, सी इज आल्सो वेरी पावरफुल लैंग्वेज, लेकिन आप लोगों को किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको सीखना है, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। किस तरह से आपको इंडस्ट्री में क्या चाहता है, मतलब किस तरह का आपको जो मतलब लाइक आप किस तरह का जॉब चाहते हो करने के लिए, किसका डिमांड है। तो ये जो दे रहा हूँ मैं लाइक एरिया, फुल स्टैक, आजकल फुल स्टैक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। आप लोग जानते हो कि आज का जो टॉपिक है फुल स्टैक डाटा साइंस है, कल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो आप कैसे पाइथन यूज करके एक फुल वेबसाइट बना सकते हो बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो भी हम कल देखेंगे, like HTML, CSS, JavaScript, React, okay, all these things, Django, all these things you will know tomorrow. But आज का जो सेशन है वो फुल स्टैक डाटा साइंस है,
तो ये फुल स्टैक डाटा साइंस क्या होता है? आई थिंक एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद हिंदी बिकॉज आई विल मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, आई होप इट विल बी गुड कॉम्बिनेशन. ये इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? प्लीज जस्ट सेंड अ मैसेज so that I can start. Hindi and English both are okay. Okay, fine. Thank you. Thanks to all of you. Thank you. Thank you. देखिए, आज का जो एजेंडा मैंने रखा है वो मैं ये रखा है. अखिल आज थोड़ा मतलब बहुत सारा ज्यादा स्टूडेंट हो रहे हैं, वो ओवरफ्लो हो रहा है. ठीक है. देखिए आज ये मेरे एजेंडा रखा है. तो मेरा एजेंडा क्या है? देखिए, पाइथन आज जो पढ़ेंगे हम, जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. पाइथन, then is your data analysis, data science, machine learning, deep learning, NLP, SQL, Power BI, Azure. Then finally, I will tell you about how to use ChatGPT. Got it? ChatGPT का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, नहीं? आजकल सब लोग ChatGPT यूज करते हो. कोई काम है नहीं? तो मेरा जो मतलब बेटी है, वो क्लास 4 में पढ़ती है, वो भी मतलब मैं इसको एक बार ChatGPT सिखा दिया कि देखो ऐसा करते हैं, तो वो भी सीख मतलब यूज कर रही है. तो ये आजकल जो डिमांडेड एरिया है. तो मैंने जो बताया कि आपको डाटा साइंस, जो फुल स्टैक डाटा साइंस के एरिया में ये सारा चीज फुल स्टैक डाटा साइंस में आता है. तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जैसे हो रहा था, आजकल वैसा नहीं है. तो आप लोगों को उस तरह सीखना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल वे. पाइथन आजकल बहुत पॉपुलर है. पाइथन इज वेरी वेरी पॉपुलर नाउअडेज. तो इसी ये जो सीक्वेंस में दे रहा हूं, इसी के सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको बता आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स सो दैट एट फाइनल यू विल नो. ओके, कौन सा पार्ट का क्या रोल है, डाटा एनालिसिस का क्या रोल होता है, डाटा साइंस क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, एनएलपी क्या होता है, पावर बीआई क्या है, आज्योर क्या है. ये सारा चीज हम जान पाएंगे. देखिए, हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे. तो हम डिस्कस करते हैं. देखिए, आजकल सब लोग, पाइथन तो बहुत पॉपुलर है, पाइथन सब लोग पढ़ रहे हैं. जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग भी पढ़ रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं. because Python is a very versatile and very powerful programming language nowadays. Because if you learn Python, and almost all any type of programming you can do, that will be your like standard application, like for developing a media player. आप एक media player बनाना चाहते हो, you can use Python. You can develop a website. कल आप सीखो, कल का जो सेशन रहेगा, आप एक वेबसाइट भी बना सकते हो Python यूज करके. मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, गेम्स, everything you can develop. And mainly Python is used in the area of data science, machine learning, artificial intelligence, image processing. These are the areas. तो आप लोगों ने सुना है टर्म, यू नो अबाउट डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, लेकिन है क्या, होता क्या है, नहीं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे. तो मैं वेरी शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि देखिए, आप लोगों ने जो जो पढ़ा है सी प्रोग्राम, ये एक सी प्रोग्राम है. सब लोग जानते हैं ये एक सी प्रोग्राम. द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज व्हाट? हेलो, what you have write this much of code, 1 2 3 4 5, so many codes you write. तो आप मुझे ही बताना कि कौन सा लैंग्वेज अच्छा होगा. ये एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है. इसका भी आउटपुट जो है वो क्या है? इसका भी आउटपुट जो है वो हेलो है. बट यू हैव राइट सो मेनी थिंग्स. ये एक जावा का प्रोग्राम है. देखिए, ये एक जावा का प्रोग्राम है. इसका आउटपुट क्या है? ना हेलो. ये एक पाइथन का प्रोग्राम, इसके भी आउटपुट क्या है? ना हेलो. बट डिफरेंस क्या है आप लोग देख रहे हो? ये लेस नंबर ऑफ कोड. सबसे जो कम कोडिंग किसमें है? पाइथन में है. वेरी लेस नंबर ऑफ कोड यू राइट, यू कैन राइट. तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट फास्टर. अगर कोई अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अगर कम टाइम में होता है, और क्या होता है, तो कंपनी एक्सपेंसेस विल बी लेस. खर्चा कम होता है. जब खर्चा कम होता है तो पैसा ज्यादा बचता है, नहीं? जब पैसा बचता है तो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ज्यादा होता है कंपनी का. कंपनी का मोटो क्या है? कंपनी का मोटो है प्रॉफिट. यस, को यस, प्रयास. कोड कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस.
जो काम आप बाकी लैंग्वेज में बहुत लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर तो बहुत इजीली हो रहा है ना, तो वाई स्टूडेंट को पाइथन। देखिए पाइथन एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन का नाम पाइथन क्यों दिया गया है? देखिए पाइथन का नाम पाइथन इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कोई स्नेक नहीं है, दिस इज नॉट अ स्नेक, दिस हाउ इट इज रिलेटेड। सी ये जो लाइक ये एक सीरियल था जो डेवलपर थे पाइथन का, द पर्सन नेम इज ग्यूडो वैन रूसम। तो उन्होंने पाइथन को बनाया था और उन्होंने एक नाम दिया था पाइथन का नाम पाइथन क्यों दिया, क्योंकि वो एक सीरियल देख रहे थे, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, एक कॉमेडी सीरियल। तो उसी सीरियल के नाम के हिसाब से उन्होंने पाइथन का नाम पाइथन, मतलब इस नया लैंग्वेज का नाम पाइथन दे दिया। एंड पाइथन इज नो वे रिलेटेड टू स्नेक। तो मैंने एक ग्रुप में हम लोग को भेजा था एक वीडियो कि अगर आप चाहते हो, लेकिन पाइथन की जो प्रोग्राम है कहाँ लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट पॉइंट, हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम कोई सॉफ्टवेयर बना सके। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सॉफ्टवेयर है, हो सकता है वो वेबसाइट हो सकता है वो कोई लाइक एक मशीन लर्निंग का ऐप हो, या कोई लाइक मोबाइल ऐप हो, या कोई लाइक एक गेम हो, किसी भी तरह का, या एआई बेस्ड एप्लीकेशन हो। ठीक है, ये सारा जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं प्रोग्रामिंग करने से सीख के बनाएंगे, विदाउट प्रोग्रामिंग तो नहीं हो सकता। एंड पाइथन इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज, तो पाइथन यूज करके हम किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ये पाइथन का स्ट्रेंथ है। तो लिखे, लेकिन ये प्रोग्राम लिखे हैं कहाँ पर? देखिए प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारा टूल्स है, और आनाकोंडा एक डाटा साइंस के लिए, आनाकोंडा जो होता है वो बहुत ही पॉपुलर है। आनाकोंडा, तो आनाकोंडा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल जो कि एआई बेस्ड और डाटा साइंस बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यू हैव टू इंस्टॉल एनाकोंडा, मैंने एक लिंक भी दिया था आप लोगों को एनाकोंडा इंस्टॉल करने के लिए। तो एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद आप इस तरह का एक पेज पा सकते हो। ये क्या है ना, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक क्या होता है ना, एक ऐसा जगह है जहां पर आप क्या कर सकते हो ना, प्रोग्राम लिख सकते हो, पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हो और एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, जुपिटर नोटबुक है। वन सेकंड, हेलो। हम्म हम्म, हम्म। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जुपिटर नोटबुक है जहां पर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, देखिए मैं एक छोटा सा राइटिंग वेरी स्मॉल प्रोग्राम, प्रिंट हेलो एंड रन इट। रन बटन यहाँ पर है, रन किया तो हेलो आ गया, देख रहे हो। मैं और एक छोटा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, अगर कोई आप पाइथन जानते हो ठीक है, नहीं जानते हो डजंट मैटर। ये एक वेरी स्मॉल प्रोग्राम है, फिर मैं थोड़ा सा पाइथन में जाऊंगा, फिर थोड़ा सा पाइथन कवर करने के बाद मैं फिर आऊंगा कहाँ पर ना, बाकी जो सब्जेक्ट है डाटा साइंस, जो जो चीज है वो सब में आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हम लिखा है, ये कोड लिखा है, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस देयर, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस, 1 2 3 4, 4 इंस्ट्रक्शंस आते हैं, 4 लाइन का कोड है। ठीक है, तो ये 4 लाइन का कोड है, ये 4 लाइन कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है ना, सीक्वेंस से। जैसे कि सी में मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट कर रहा था, यहाँ पर टॉप टू बॉटम, पहले फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो यहाँ पर कोई डाटा टाइप की जरूरत नहीं है, तो ये सिंपल प्रोग्राम है, कोई मेन फंक्शन नहीं चाहिए, सिंपली जैसा आप इंग्लिश लिखते हो लिखना है। ठीक है, सपोज आप मैं एक हेडिंग देना चाहता हूँ, तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर, तो मैं दिया एडिशन ऑफ टू नंबर, हेडिंग हो गया। ठीक है, तो मैं अभी इसी प्रोग्राम को लिख सकता हूँ, यहाँ पर दिया, कॉपी किया और यहाँ पर लिखा, रन किया, हो गया आउटपुट। अब और एक प्रोग्राम लिखोगे लेट्स से, मतलब यहाँ पर एक फैसिलिटी क्या है ना, आप यहाँ पर जितना भी प्रोग्राम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर, दैट्स इट्स स्ट्रेंथ। ये उसका स्ट्रेंथ है, ये पाइथन का स्ट्रेंथ है, ये मतलब जुपिटर नोटबुक का स्ट्रेंथ है कि यहाँ पर आप जितना भी प्रोग्राम लिख सकते हो। ये पहला प्रोग्राम गया, फिर सेकेंड प्रोग्राम और एक प्रोग्राम, मैं यहाँ पर और एक प्रोग्राम लिखूंगा, A = 10, B = 5, C = A माइनस बी, देन प्रिंट व्हाट, ठीक, दूसरा प्रोग्राम। ठीक, कितना आसान में हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पर देखिए
normally what I prefer when I am in a classroom, I always tell students not to use pen and paper. Don't use pen and paper. If you want to become a like software professional, you should not use pen and paper. Everything should be you write should on the like system. And Jupyter Notebook is a wonderful editor where you can write a program very easily. See, तो मैं लेट्स से मैं चाहता हूँ एक इमेज को ऐड करने के लिए मैं इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे आपने कोई डायग्राम बनाया है, जैसे कॉपी में डायग्राम बनाते हो, तो आप एक डायग्राम बनाओगे, उस डायग्राम को ऐड करोगे, आराम से कर सकते हो। देखो मैं कर रहा हूँ अभी, मैं अभी यहाँ पर एक इमेज ऐड करूंगा। मैंने दिया हेडिंग दिया यहाँ पर नहीं देना है, क्या करना है, देखिए इस सेल जो है यहाँ पर क्या करना है, इसको मार्क डाउन करना है, ठीक है। तो मैंने मार्क डाउन किया, फिर पेस्ट कर दिया, रन कर दो, आ गया इमेज। तो बहुत ही आसान। तो आपने देखा कैसे इमेज आ रहा है। तो ये जुपिटर नोटबुक है, यहाँ पर आप पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हो। सपोज मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जिन लोगों को पाइथन के बारे में आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा वो प्रोग्राम लिखने के बाद फिर जाऊंगा। लेट से मैं एक छोटा सा प्रोग्राम दिया कि लेट से मुझे फाइंड करना है क्या, लेट से एडिशन ऑफ टू नंबर करना है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैं जितना बार भी रन करूंगा तो क्या आएगा, 30 ही आएगा। तो मैं वो नहीं चाहता। मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को मैं जितना बार लिखूंगा मुझे मांगेगा कि वैल्यू क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी, उस तरह मुझे मांगना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखा है यहाँ पर इनपुट एंटर फास्ट नंबर। मतलब जैसे एटीएम में आप मांगते हैं ना वैल्यू, एंटर द पिन नंबर, आप कहाँ से देते हो, कहाँ से देते हो आप पिन नंबर, कीबोर्ड से। उस तरह से ही आपको मांगेगा, एंटर सेकेंड नंबर। फिर लिखा मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी। रन करते हैं, मैं दिया 10 20, बट द आउटपुट इज 10 एंड 20। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों हो रहा है, ये 1020 क्यों आ रहा है। देखिए ये 1020 इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, देखिए मैं ये लिख रहा हूँ 10 प्लस 20, क्या आंसर है 30। मैं भी लिखूंगा 10 प्लस 20, कितना आ रहा है, और द आउटपुट इज हाउ मच 1020। So here the same thing happens. This is called as integer addition. This is called as string. String means collection of characters. Here 10 and 20 both are like strings. Two character, four character. So what is the solution? See, the solution is very simple. Solution क्या है? आप सिंपली इसका आगे लगा दो क्या, इंट लगा दो। मैंने इंट लगाया, फिर मैंने इंट लगाया यहाँ पर। इंट मतलब आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो। अब दो, अब वैल्यू दो, ओके डन, वेरी सिंपल। so this is your integer addition। तो ये integer addition है, हो गया एडिशन डन। अगर आपको फ्लोट ऐड करना है, फ्लोट मतलब क्या होता है ना, फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे 2.5 3.5, इस तरह का वैल्यू को फ्लोट बोलते हैं पाइथन में। तो लिखा है पर फ्लोट, क्या लिखा ना, फ्लोट। अब मैं क्या कर सकूंगा, इट्स 2.3, वेरी गुड। देन 4.2, सॉरी 4.2, again 3.2, let's say 4.1, got it। this is your what, this is your addition, float। So very simple program you can do। Suppose a very small program I want to, let's say for example, what I have to do, I want to let's say uh, my question is to write a program to find area of a सर्कल। एक सर्कल का एरिया फाइंड करना, वेरी सिंपल। सर्कल फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर, highlight here, radius equal to how much, float
इनपुट, अगर आपको रेडियस पता है तो ये निकल जाएगा। कौन निकलेगा? एरिया। एंटर रेडियस, तो रेडियस मैंने इनपुट दिया। अब एरिया कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? 3.14 इंटू आर देन डिस्प्ले एरिया। डन। कितना ही सिंपल है ये। तो मैं डेट से रेडियस दिया हूँ, एरिया रेडियस दिया हूँ 10, एरिया निकल गए। तो सिंपली इनपुट देना है, फॉर्मूला यूज करना है, आउटपुट निकालना है। सपोज मैं आपको बोलूंगा, I'll ask you, okay, do one thing. You display, let's say, you display your you display your name in ओडिया। आप अपना नाम को ओडिया में टाइप करो, एक प्रोग्राम लिखो जिससे कि आपका नाम ओडिया में आएगा। Are you getting a point? You will display your name in ओडिया। How that is possible? Okay, but Python supports it. Let's see. I'm showing you. What is this character called as? It's capital A. What is this character called as? This is another in another language character. Maybe Chinese or not maybe. Let's say, which character it is? This is ODI character. Okay, this is ODI character. What character? Of. Let's say teacher of 2325. This is Hindi character. What is Hindi character is? Ka. Right now, if you try, you can display your name in ODI. Okay, very easily you can do it. Okay, next. Suppose so somehow you have some basic idea about Python, very simple language. Suppose I want to display my name 10 times. For that, we are using concept called as loop. So let's for I in range 1 to 11. So you may ask, sir, what is this? 1 to 11. मुझे मेरा नाम को 10 बार प्रिंट करना है। मैंने मेरा नाम लिखा है रंजन। देख रहे हो? फॉर आई इन रेंज 1 to 11। 1 to 11 मतलब ये लूप जो है ये 10 बार चलेगा। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10। आ रहा है? तो मेरा नाम 10 बार डिस्प्ले हो गया, तो फाइन। मैंने लिखा एक बार है नहीं। सपोज मैं आपको बोलूंगा कि अच्छा एक काम कीजिए, एक एक लाइन ड्रॉ कीजिए। छोटा सा एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। मैंने आपको बोला, देखिए आप लोग एक काम कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन के लिए एक एक्स एक्सिस चाहिए, एक वाई एक्सिस चाहिए। तो ये लाइन है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। द इक्वेशन इज व्हाट? mx प्लस सी। इक्वेशन। तो मैं आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो मुझे क्या चाहिए ना, कुछ एक्स में कुछ पॉइंट्स चाहिए, वाई में कुछ पॉइंट्स चाहिए। तो मैं लिखा है यहाँ पर इनपुट। तो मैं क्या लिख रहा हूँ अगर आप जानते हो ठीक है, नहीं तो सिंपली सोचो कि हम एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ वैल्यू लेंगे, फिर वाई निकालेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे। मैं एक्स एक्स क्या ले रहा हूँ, देखिए एक्स इक्वल टू एनपी डॉट अरे। मैं एक्स में ले रहा हूँ एनपी डॉट अरे, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ पॉइंट मैंने लिया है। और स्लोप मेरा कितना है, वो एम एक्स प्लस टी। स्लोप कितना है? 0.3 है। टी कितना है? 2.5 है। तो मैं लिखा वाई कितना है, वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको ना, वाई को। देखिए तो एक्चुअली हुआ क्या है ना, एक्स था 2, तो वाई कितना आया 3.1। कैसे ना, 2 इंटू 0.3, 0.6 प्लस 2.5 3.1। वाई जब 3 हुआ देन 3.4 इज लाइक दैट। अब मुझे लाइन ड्रॉ करना है। देखिए पाइथन में कितना इजीली कर सकते हो। मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इंपोर्ट। अब बोले ये क्या है ना, पाइथन में हर एक काम के लिए कोई ना कोई टूल्स है। ये मैटप्लॉटलिब एक टूल है, इसको सब पैकेज बोलते हैं, पीएलटी। पीएलटी डॉट प्लॉट। आप लोग देखिए एक्स कॉमा वाई। देखिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, देखना है।
लाइन ड्रॉ हो गया, देख रहे हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये लाइन ड्रॉ हो गया है। मैं उन पॉइंट को दिखाना चाहता हूँ। तो पॉइंट्स देखो, एक्स और वाई के बीच में जो पॉइंट्स था, आप लोग देख सकते हो, ये तो पॉइंट्स बिटवीन एक्स एंड वाई। गॉट इट? तो कितना इजी, आई वांट टू शो यू हाउ इजी। तो ये तो पाइथन का कुछ बेसिक्स था, मैं दिखाया आपने आपको। बट हमारा जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? तो मैं मुझे थोड़ा आपको पाइथन के बारे में बताना था। फिर नेक्स्ट जो टूल हमारा था वो क्या था? कि डाटा एनालिसिस, जो हमने जो सीक्वेंस दिया था आप लोगों को, ये था। तो थोड़ा सा पाइथन के बारे में आपको आइडिया आया? हाँ, आपके माइंड में इतना तो आया कि हाँ भाई पाइथन बहुत सिंपल है, दैट्स एनफ। ओके, राइट नाउ जो टर्म है वो क्या है ना? डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस। देखिए डाटा एनालिसिस क्या होता है और डाटा एनालिसिस कैसे होता है, हम इसको आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जो डाटा एनालिसिस होता है, सब लोगों का एक टर्म होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एनालिसिस एंड डाटा साइंस। तो ये डिफरेंस को मैं हटाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि डाटा एनालिसिस क्या होता है, डाटा साइंस क्या होता है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। देखिए डाटा साइंस इज ए सुपर सेट ऑफ डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस जो होता है वो डाटा साइंस का एक पार्ट है। ठीक है, मतलब आपको डाटा डाटा एनालिसिस की जरूरत क्या है एक्चुअली? देखिए, सपोज मैं जानना चाहता हूं कि मुझे जानना है कि जब कोविड आया था, मुझे जानना है कि कोविड में ज्यादातर लोगों का कोविड में ज्यादातर लोगों का जो ज्यादातर लोग थे, उनमें से मेल लोगों का डेथ ज्यादा हो रहा था कि फीमेल का? भुवनेश्वर में कौन, उड़ीसा में कौन सा एरिया से, कौन सा भुवनेश्वर में कौन सा एरिया से ज्यादा लोगों को लाइक डेथ हो रहा है या अफेक्ट हो रहे हैं? तो उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो हमारे पास क्या चाहिए? डाटा चाहिए। तो वी नीड डाटा। तो वो जो डाटा चाहिए हमें, वो डाटा के लिए क्या चाहिए हमें ना? जो डाटा चाहिए वो डाटा हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके फिर उसको उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन वो जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसमें बहुत सारा क्या होगा? इम्प्योरिटीज होगा। जैसे क्रूड ऑयल को डायरेक्टली आप स्कूटर में नहीं डाल सकते, उस तरह से जो डाटा है आपके पास, वो डाटा क्या है ना? वो डाटा इम्प्योर है। उसको प्यूरिफाई कौन करेगा? ना उसको प्यूरिफाई करेगा कौन? ना उसको प्यूरिफाई करेगा आप, एक डाटा साइंटिस्ट करेगा और डाटा एनालिस्ट करेगा। तो एनालिसिस का काम क्या होता है? वो जो डाटा कलेक्शन हुआ है उसको, उसके जो लाइक उस इम्प्योर डाटा से कुछ यूजफुल, यस यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, वो एक डाटा एनालिसिस का काम है। फिर उस जो इम्प्योर डाटा है, वो जो डाटा से आपने कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन लेना है। तो डाटा के साथ खेलना, खेलने का जो काम होता है वो डाटा एनालिस्ट का काम होता है। यू हैव टू प्ले विद द डाटा। आप डाटा के साथ खेलना चाहिए। तो हाउ टू डू दैट? तो हाउ टू प्ले विद द डाटा? मैं कुछ डाटा दिखा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा आपको आइडिया आएगा, ताकि आप थोड़ा सोच सको हाँ, हाँ क्या डाटा है। देखो, मैं कुछ डाटा आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक डाटा आप देख रहे हो, कोविड डाटा। क्या है? कोविड। जो कोविड आया था आप लोग पता है, हमने इसकी कोविड डाटा है, इस ओपनिंग, जस्ट अ मिनट। अब देखो ये कोविड का डाटा, देख पा रहे हो? ये जो डाटा है वो कोविड का डाटा है। तो ये जो कोविड का डाटा है, आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स है। ठीक, लाइक फीवर हुआ था कि नहीं हुआ था, उसको लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम था कि नहीं था, नहीं। बहुत लोगों का डाटा है, 4,000 5,000 लोगों का डाटा है। इस डाटा से आपको कुछ पता चल रहा है क्या? ये नो क्या है ये? आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालना है। ये एक डाटा है, देख रहे हो? ये एक डाटा है एक हार्ट डिजीज के लिए। ठीक,
पर्सन को हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा। इसमें बहुत सारा मिसिंग भी है, लिखा है एन ए, इसमें सारा बहुत इम्प्योरिटीज भी है। तो इसको देख आप क्या कुछ समझ पा रहे हो? नहीं। तो अगर एक डाटा एनालिस्ट को दे दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, डाटा को क्लीन कर देगा, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेगा, बताएगा अच्छा कितना मेल है कितना। अब आप बता सकते हो कितना मेल है कितना फीमेल है? यहाँ से आप बता सकते हो हाउ मेनी मेल एंड फीमेल? नो। बट अगर ग्राफिकली आ जाएगा तो अच्छा होगा। तो इससे बहुत सारा है चीज है जो एक डाटा एनालिस्ट करता है। तो डाटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? सिंपली वो डाटा को क्या करता है, डाटा से रॉ डाटा को यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करता है, उससे सारा इम्प्योरिटीज को हटाता है। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज होता है वो डाटा से हटाता है। फिर इम्प्योरिटीज को हटाने के बाद क्या करता है ना, वो डाटा को डिसीजन मेकिंग के लिए, जो हमारा जो डिसीजन लेते हैं कि जो भी जिस तरह का भी डिसीजन लेंगे कि कहाँ कौन सा एरिया में वैक्सीनेशन ज्यादा करेंगे, कैसे करेंगे हम डिसीजन लेंगे, तो वो डाटा से लेंगे ना। तो डाटा एनालिसिस फोकस एग्जामिनिंग and to uncover insights patterns of the data, okay, to answer specific question। जैसे कि मैं बोलूंगा कि अच्छा हमारे डाटा में मेल ज्यादा है कि फीमेल है, अच्छा मेल का डेथ रेट ज्यादा है कि फीमेल का, कौन सा एज के रेंज में डाटा ज्यादा लोगों का डेथ हो रहा है, ये सारा चीज ठीक है। तो ये डाटा एनालिसिस में आता है। और डाटा साइंस में क्या आता है? डाटा साइंस क्या है? इट इज सुपर सेट ऑफ डाटा डाटा एनालिसिस। तो डाटा यहाँ पर डाटा एनालिसिस करोगे, फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करोगे। देखिए डाटा एनालिस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग डाटा क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग डाटा के यूज करके कुछ क्वेश्चन पूछकर यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, उसको ग्राफिकली विजुअलाइज कर रहा है। लेकिन जो डाटा साइंटिस्ट है, डाटा साइंस जो एरिया है वो क्या है, वो एग्जिस्टिंग डाटा को हम तो यूज करेंगे तो क्लीन करेंगे, सब करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, लेकिन फिर फ्यूचर में क्या होगा, जैसे नेक्स्ट मंथ में कोरोना का सिचुएशन क्या होगा, हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू डाई इन नेक्स्ट मंथ, कितने लोगों को हार्ट डिजीज होने वाला है। तो ये सारा जो फ्यूचर प्रेडिक्शन, स्टॉक प्राइस, कल डॉलर का वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है, तो उसमें वो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी ऐड कर रहा है, लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब कॉन्सेप्ट भी ऐड हो रहा है। तो ये अगर कोई पूछता है आपको डाटा साइंस और डाटा एनालिस्ट के डिफरेंस है, ये कुछ डिफरेंस है। एनालिसिस सिर्फ एनालिसिस तक सीमित है, क्वेश्चन पूछा, यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाला, ग्राफिकली विजुअलाइज कर लिया, ओके ठीक है। लेकिन जो डाटा साइंस है वो उससे ब्रॉडर फील्ड है। स्किल क्या चाहिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि स्किल क्या चाहिए आपको डाटा एनालिस्ट के लिए, एक्सेल चाहिए, एसक्यूएल चाहिए, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर फॉर एनालिसिस, इवन पाइथन भी आप यूज कर सकते हो, पाइथन बढ़िया पैकेज है पांडा, उसको यूज कर सकते हो, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर। और डाटा साइंस के लिए क्या, पाइथन तो यूज है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज एक डाटा साइंटिस्ट को सीखना पड़ेगा। द पर्पस, ये सब पर्पस है। पर्पस क्या है डाटा एनालिस्ट का और डाटा साइंटिस्ट का, मैंने अभी बता दिया कि सिंपली डाटा एनालिस्ट में क्या होता है, एनालिटिक्स में, एनालिसिस में एक जो डाटा एनालिस्ट है वो यूज जो डाटा हमारे पास है उसी को यूज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, नहीं। वो जो डाटा साइंस है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एग्जिस्टिंग डाटा को यूज करके फिर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो डाटा साइंस में जो एरिया आ रहा है उसमें डाटा एनालिसिस प्लस मशीन लर्निंग प्लस डीप लर्निंग, ये सारा चीज भी इन्वॉल्व है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, लाइक डाटा एनालिसिस इज यूज्ड वाइडली इन इंडस्ट्रीज सच एज बिजनेस इंटेलिजेंस, मार्केट रिसर्च, परफॉर्मेंस एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल। डाटा साइंस भी यूज हो रहा है आजकल, लाइक फाइनेंस, मेडिकल, ऑल ओवर थिंग्स सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रीवियस स्लाइड है, देख सकते हो, यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दैट, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, हमें क्विकली बहुत सारा चीज कवर करना है तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या स्टेप्स, देखिए जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो पहले हमने क्या बताया, अब क्या चाहिए, पाइथन चाहिए, पाइथन वाला थोड़ा आइडिया आ गया। फिर डाटा एनालिसिस तुम कैसे करते हैं दिखाएंगे अभी हम। तो हमारा एक काम था, एक डाटा था हमारे पास, क्या था ना, डायबिटीज। देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, मैं इसको रन किया, ये एक डायबिटीज का डाटा सेट, मतलब जो लोगों को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, जैसे
हंड्रेड्स ऑफ डाटा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, जैसे हंड्रेड्स ऑफ डाटा अवेलेबल है। तो ये जो डाटा सेट है आप देख रहे हो, इसमें क्या है, भाई लेडीज लोगों का डाटा सेट है, प्रेगनेंसी है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सारा ग्लूकोज है, मतलब डायबिटीज होने के लिए जो जो पैरामीटर्स चाहिए। तो ये जो आउटपुट क्या है ना, क्लास है, इसको डायबिटीज होगा कि वन मतलब उसको डायबिटीज था, जीरो मतलब नहीं था, ये एक डाटा है। मैं एक डाटा से डाटा एनालिस्ट, मुझे एनालिस्ट करना है, मैं कैसे करूंगा उसको? तो मैंने इसको लोड किया। तो लोड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं, और पाइथन का क्या यूज कर रहे हैं ना, पांडास। ठीक है, देखिए, डाटा एनालिसिस पाइथन में भी कर सकते हैं। तो पहला चीज पाइथन पढ़ना पड़ेगा आपको। सेकंड क्या है ना, पाइथन पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो ना, जो डाटा आपको दिया गया है, पांडास एक पैकेज, थर्ड पार्टी पैकेज है, जिसके हेल्प से आप इस डाटा को क्या कर सकते हो ना, क्लीन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। मैं बोलूँ अच्छा कितना, पहला 5 रो दिखाइए, ये पहला 5 रो है, लास्ट 5 रो दिखाइए, दिखाया। इसका स्टेप कितना है, मतलब कितना रो कितना कॉलम है, मेरे पास 768 लोगों का डाटा है। अच्छा मैंने बताया, अच्छा बताइए कितने लोगों को डायबिटीज था और कितने लोगों को नहीं था। तो यहाँ पर बताया कि ये कमांड, सिंपली कमांड लिख लिया। आप बोलो सर आपको पता नहीं है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझो क्या, कोडिंग समझने की जरूरत नहीं है, आप समझो कि क्या हो रहा है, मतलब कितना इजीली कर रहे हैं मुझे। ये जो डाटा दिखा रहे हैं, अगर आप, मैं आपको बोलूंगा अच्छा बताओ कितने लोगों को डायबिटीज है कितना नहीं है, आप क्या करोगे, काउंट करोगे, वन कितना है, जीरो कितना है, एक कमांड लिख लिया मैंने यहाँ। तो ये काउंट करके मुझे बता रहा है कि कितना लोगों को है, नहीं है। 500 लोगों को डायबिटीज नहीं था, 260 लोगों को है। ठीक है, फिर मैं उसको ग्राफिकली देखना चाहता हूँ, ग्राफिकली विजुअलाइज करना चाहता हूँ। तो ग्राफिकली भी कर सकते हैं विजुअलाइज। देखिए, ये ग्राफिकली विजुअलाइज करेगा, इसके लिए मैंने एक टूल यूज किया है जो ग्राफिकली कर देगा। ठीक है, ये भी डाटा एनालिस्ट का काम है। मैं बोला अच्छा इसको एक काम कीजिए, परसेंटेज वाइज दिखाइए, परसेंटेज वाइज। देखिए ये प्राइस डिपेंड करता है, ये आस्किंग इज टैबलू और पाइथन डिपेंड करता है। देखिए टैबलू जो है वो, अगर कोई कोडिंग नहीं जानता है तो उसके लिए ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आप पाइथन के साथ भी कर सकते हो, पाइथन यूज कर कोडिंग यूज करके टैबलू यूज कर सकते हो, पावर बी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ पावर बी का एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो इससे परसेंटेज निकाल सकते हो आप। बट पाइथन, बट कोडिंग सीखना अच्छा है। अब अगर लोग एक्सेल में भी काम करते हैं, एक डाटा एनालिस्ट जो है वो एक्सेल में भी काम करता है। तो आप बोलो सर एक्सेल, सिर्फ एक्सेल सीखने से हो जाएगा क्या, नहीं। तो आपको पूरा पैकेज सीखना पड़ेगा अगर चाहते हो कि हाँ पूरा अच्छा से अच्छा करियर बनाना है। मतलब प्रेग्नेंट कॉलम में क्या क्या है, मतलब हाँ जो पहला कॉलम को मैंने लिखा, एक कमांड लिखा, वैल्यू काउंट्स, तो बता दिया कि कौन सा, लाइक 135 पीपल आर देयर, वुमेन आर देयर, वो वन टाइम प्रेग्नेंट थे, 111 लोग थे जो जीरो टाइम प्रेग्नेंट थे। तो इससे पता चलता है मैक्सिमम जो प्रेगनेंसी का रेट था आइदर 1 और 2। वेरी रेयरली एक आदमी था, एक वुमेन था जो 17 टाइम्स था। तो इसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, एज का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एज मिनिमम वैल्यू कितना है, ये कुछ नहीं, इन हुईच रेंज। देखिए मैं कोडिंग में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं इसको जल्दी दिखा रहा हूँ ताकि आपको, हाँ ठीक है, रॉ मैटर मतलब हम समझ में आए। अगर फ्यूचर में वो कोई वर्कशॉप करेंगे तो वर्कशॉप में तो ज्यादा टाइम लेंगे, 2 या 3 दिन का, फिर उसको हम ये करेंगे। पर ये एक वेबिनार है, मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में आए हाँ कि ये चीज होता है, हो रहा है, और इसको मतलब आपको सीखना है। तो 20 से 21 से 40 के बीच में कितना लोग हैं, 574। तो उन लोगों में से कितने लोगों को डायबिटीज है, कितने लोगों को डायबिटीज है, मैं सिंपली कमांड लिख दिया तो हो गया। देख रहे हो, एक एक लाइन। तो 574 लोग हैं 21 से 40 के बीच में। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा एज रेंज में ज्यादा लोगों को डायबिटीज हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपका मैनेजर आपको पूछा, बताओ, ये डाटा दे दिया सिंपली, बताया अच्छा एक काम करो, कौन सा एज का रेंज में ज्यादा डायबिटीज हो रहा है, तो अगर हम उन्हीं लोगों पर ज्यादा फोकस करेंगे। देख रहे हो, तो 160, तो ये कितना परसेंट है, 28.9%।
कौन सा एज के रेंज में, कौन सा एज के रेंज में ना 21 से 40 की एज के बीच में इतना परसेंटेज लोगों को डायबिटीज हो रहा है। फिर 40 से लेकर 80 के 60 के बीच में कितने लोग हो रहा है, कितने लोग हैं 167, कितने लोगों को हुआ है डायबिटीज 95, तो परसेंटेज कितना है ना 56। तो आप लोग देख सकते हो 40 से लेकर 60, 41 से 60 के बीच में लोगों का परसेंटेज क्या है, 56% है डायबिटीज होने का चांस। 61 से 80 के बीच में कितना परसेंटेज है ना 28% ओनली। तो इसका मतलब क्या है, 21 से 40 के बीच में हुआ 28.9%, 41 से 60 इतना परसेंटेज, 61 से 81 28.9%। तो इससे हमें कंफ्यूजन मिल गया। हाँ अरे अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर जो डायबिटीज हो रहा है मैक्सिमम 41 से 60 के एज में ही अगर हम लोगों को अवेयरनेस देंगे, ये करेंगे तो जैसे यूट्यूब में हम क्या करेंगे, जो लोग 41 से यूट्यूब 60 के बीच में है उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट ऑफ लाइक इंडिया से आएगा कि डायबिटीज के लिए आप लोग लाइक केयरफुल रहो यार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने एक रॉ डाटा से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल दिया, ये एक डाटा एनालिस्ट का काम है। फिर उसमें क्या मिसिंग वैल्यू उसको हैंडल कर सकते हो, मिसिंग मतलब जो डाटा लोगों ने नहीं दिया है। टू पीपल आप देख, ठीक है डिपेंड करता है। तो मिसिंग वैल्यू हैंडल करना है, ये डाटा में क्या क्या मिसिंग है उसे हैंडल करेंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई सपोज कोई अपना एज नहीं दिया है, गलत दिया है, कोई अपना ब्लड प्रेशर नहीं बताया है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग। तो हमने देखा इस डाटा सेट में कि देखिए हर एक कलम का मिनिमम वैल्यू जीरो है, देख रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्लड प्रेशर जीरो हो सकता है क्या, नहीं। स्किन थिकनेस जीरो हो सकता है क्या, नहीं। इंसुलिन जीरो हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये सब मिसिंग है, ये डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लिखा है मोस्ट ऑफ द कॉलम्स आर जीरो वैल्यूज आज मिनिमम वैल्यूज, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी जीरो फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या है कि जो हमने जब डाटा कलेक्ट किया था उस टाइम में हमने क्या किया था, जब डाटा कलेक्ट किया था उस टाइम में हमने जीरो दिया था। कब जीरो किसको दिया था ना, जीरो दिया था जहां पर डाटा हमें नहीं मिला वहां पर जीरो रख दिया। अच्छा बताइए ब्लड प्रेशर ग्लूकोज कॉलम में कितना लोगों को वैल्यू जीरो है, 5। ब्लड प्रेशर में कितने लोगों को जीरो है, 35। स्किन थिकनेस में कितने लोगों को जीरो है, इतना। इंसुलिन में कितने लोगों का जीरो है, बॉडी मास इंडेक्स। तो हमने क्या किया, अच्छा एक काम करते हैं, जहां जहां पर जीरो है, जिस कॉलम ग्लूकोज में जहां जहां पर जीरो है, एक काम करो उस कॉलम का, हाँ यू कैन इग्नोर ऑल्सो, प्रयास यू कैन इग्नोर ऑल्सो, उस डाटा को आप इग्नोर कर सकते हो। नहीं तो क्या कर सकते हो, उसकी जगह अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा है उस डाटा की जगह आप उसका मीडियन भी दे सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है आपको आइडिया है कि देखिए जो डाटा आपको आज डाटा साइंटिस्ट किसी भी तरह डाटा दिया जाएगा और इसका कैरियर, मतलब आपको ऑफिस में एक डाटा दे दिया गया, एक डाटा ले लो, एक काम करो, मुझे ये आंसर चाहिए, इस डाटा को क्लीन करके मुझे ये आंसर चाहिए और ग्राफिकली चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। यही काम होता है डाटा एनालिस्ट का। फिर हमने उसको मॉडलिंग भी किया है और इसको स्केलिंग में अप्लाई किया है। मतलब बहुत सारा टेक्निक होता है कि यहाँ पर जो डाटा आपका था वो सारा डाटा जो है सबका यूनिट और डायमेंशन सेम नहीं था, इसलिए हमने इसको स्केलिंग कर दिया। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ग्लूकोज का जो यूनिट है वो बॉडी मास का यूनिट सेम नहीं है, इंसुलिन का सेम नहीं है, सबका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। हम इसलिए क्या करते हैं ना सारा को एक ट्रांसफॉर्म करते हैं जीरो की, जीरो और वन के बीच में, वो भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है, हमने यहाँ पर किया था। ठीक, ठीक है। तो ये सब यहाँ तक ये सब डाटा एनालिस्ट का काम है। तो बोले सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मतलब क्या होता है, देखिए मशीन लर्निंग का काम क्या है, एक मशीन को हम सिखाएंगे, मशीन लर्न करेगा। तो सिंपली देखिए ये फुल स्टैक डाटा साइंस में
पाइथन एक पार्ट है, देन डाटा एनालिसिस, then we'll go for like machine learning, then we'll go for like you can use deep learning, you can use NLP, lots of things are there. मेरा वॉइस सबको आ रहा है क्लियर? somebody is telling that मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, अनिमा प्रियदर्शनी। अच्छा बाकी लोग बता सकते हो मेरा वॉइस आ रहा है क्या? लाइक सिद्धेश्वर, समीक्षा, आशीष, बादल, दीपक, हरप्रिया, ज्योति, वॉइस आ रहा है क्लियर? ओके फाइन। देखिए सब लोग को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, तो इसका मतलब आप थोड़ा अपना नेट कनेक्शन चेक कर लो। देखिए सिंपल सा चीज है, आप ये सब जो जिस चीज को अब एक लर्नर को इमेजिन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप कैसे इमेजिन कर रहे हो कि देखिए मुझे अगर एक फुल स्टैक डाटा साइंस डेवलपर बनना है तो मुझे पहले पाइथन सीखना पड़ेगा, फिर डाटा एनालिसिस मुझे करना चाहिए। बहुत सारा लाइक टूल्स है, जैसे कि पांडास है पाइथन में, ठीक है। बहुत सारा टूल्स है जिससे आप डाटा एनालिसिस कर सकते हो, फिर टैबलू है, पावर बीआई है, बहुत सारा टूल्स है। ओके फाइन, थैंक यू। तो मशीन लर्निंग क्या होता है थोड़ा आइडिया जानना चाहिए, ये भी हमारे इस टूल में मशीन लर्निंग, जब डाटा एनालिस्ट का काम खत्म हो गया, एनालिसिस का काम खत्म हो गया, जो मशीन लर्निंग क्या है, तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, एक मशीन को हम सिखाएंगे, इंटेलिजेंट बनाएंगे। मशीन कैन लर्न लाइक ह्यूमन बींग्स, एक मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह सीख सकता है और डिसीजन ले सकता है, जैसे रोबोट। सोफिया का नाम सुना होगा आपने, सुना है आप लोगों ने सोफिया का नाम? वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो वो डिसीजन वो उसके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज पॉसिबल? उसको सिखाया गया है, एक गाड़ी जा रहा है कोई ड्राइवर नहीं है, वो कैसे पॉसिबल? एक गाड़ी जा रहा है, कोई ड्राइवर नहीं है, वो गाड़ी ऑटोमेटिक चल रहा है। क्या गाड़ी एक क्या कार एक बस इंसान है क्या? इज इट ह्यूमन बीइंग? नो। तो बस मशीन है, तो मशीन को कैसे आप इंटेलिजेंट बना दे रहे हो? तो मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए उसको सिखाना पड़ता है, दैट इज मशीन लर्निंग। क्या मशीन को हम सिखा सकते हैं? हमारी टार्जन कार या ओके वेल दीपक। तो मशीन को कैसे इंटेलिजेंट बनाएंगे? तो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, एक मशीन को हम इंटेलिजेंट बना देंगे ताकि आप डिस्टिंग्विश ना कर सको कि ये इंसान है कि मशीन है। इफ यू कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मशीन एंड ए ह्यूमन बीइंग, आर यू गेटिंग पॉइंट? आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि इंसान है कि ह्यूमन बीइंग है, मशीन है, वो इस सब डिसीजन लेगा। तो आजकल बहुत सारा टूल्स आ रहा है एआई का, जैसे कि ट्रैफिक स्क्वायर में जो कैमरा लगा है, वो कैसे पकड़ रहा है कि आदमी हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, समझ रहे हो? तो उसको सिखाया जा रहा है ना। तो फुल स्टैक डाटा साइंस पे जो फुल स्टैक डाटा साइंटिस्ट बनेंगे उनमें ये भी है। ये सिखाया जाता है किस लिए ना, जो डाटा आपने क्लीन कर लिया है उसको यूज करके कैसे फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है। जैसे कार जा रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है ना। जो कैमरा लगा है ट्रैफिक का, वो क्या कर रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है वो आदमी हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। तो उसको सिखाया गया है। तो उसको कैसे सिखाया जाता है, ये पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में बहुत सारा लाइक अगर आप देखोगे जो एग्जाम्पल देखोगे, यूट्यूब रिकमेंडेशन आता है, हर एक को डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशन, मुझे जो रिकमेंडेशन आपको वो नहीं आएगा, मुझे जो वीडियो आएगा आपको नहीं आएगा, ये कैसे होता है? तो मतलब यूट्यूब हमारा डाटा यूज कर रहा है, वो डाटा को यूज करके वो फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा है कि हाँ एक नया वीडियो अगर आया है तो इसको ये पसंद होगा कि नहीं होगा। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम, मतलब फेस देख के बनाएंगे। मतलब कोई स्टूडेंट आया अपना फेस को मशीन करके कैमरा करके दिखा दिया तो उसका अटेंडेंस हो गया। जैसे फिंगरप्रिंट देते हैं फेस देख के। अरे मीडियम पॉइंट। तो आपको, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, एक कैमरा कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? नहीं, कोई इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। तो ये सारा चीज है मशीन लर्निंग के लिए है, बहुत सारा टेक्निक्स है मशीन लर्निंग में, बहुत सारा एल्गोरिथम से उसको सीखना पड़ता है। तो मशीन लर्निंग का माइंड में रहना चाहिए कि देखिए हम क्यों कर रहे हैं ना, एक मशीन को सिखाएंगे, सिखाने का जो तरीका है वो इसमें पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारा एल्गोरिथम होता है, लाइक केएनएन, नेइव बेस,
डिसिशनरी, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब बहुत सारा एल्गोरिथम होते हैं जो इसमें पढ़ते हैं। वो उसके लिए बहुत सारा आसान है। पाइथन का बहुत सारा बनाया बनाया हुआ पैकेज है जिसको आप यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर आया एक नया टेक्निक आ गया, क्या? डीप लर्निंग। बोले ये सर क्या होता है? देखिए, डीप लर्निंग एक नया एडवांस टेक्निक है, आजकल बहुत ही पॉपुलर है। और आजकल जितना भी देख रहे हो ना, लाइक कंप्यूटर विजन, जितना भी एआई टूल, ये सब डीप लर्निंग में होता है। इमेज प्रोसेसिंग, मैंने एक ओडिया में लिखा है कुछ लेटर, उसको मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, वो स्कैन करके इंग्लिश में प्रिंट करके दे देगा। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मैं ओडिया में बोलूंगा, वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, आजकल इसमें बहुत ही काम हो रहा है। जब लाइक ज्यादा काम जितना कॉम्प्लेक्स हो, उसका डिमांड ज्यादा होता है, तो कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए डीप लर्निंग यूज होता है। मतलब एक मशीन के अंदर एक ब्रेन लगाया जाता है, आर्टिफिशियल ब्रेन। जैसे एक बायोलॉजिकल ब्रेन होता है, आर्टिफिशियल ब्रेन लगाया जाता है। ये आर्टिफिशियल ब्रेन है, ये हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होता है। मेरा हाथ में मच्छर बैठा, मैं मारा उसको, क्योंकि सिग्नल जा रहा है ना मेरे ब्रेन में, ब्रेन डिसीजन ले रहा है। तो उस तरह से एक मशीन में एक आर्टिफिशियल ब्रेन लगाया जाएगा। ब्रेन मतलब क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल। नहीं, तो हमारा जो ह्यूमन का ब्रेन जैसे लर्न करता है, वैसे हम एक मशीन का ब्रेन को भी लर्न करा सकते हैं। तो इसमें ये चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो था आर्टिफिशियल, जो होता है लाइक न्यूरल नेटवर्क, जैसे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, उस तरह से होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मतलब एक मशीन के अंदर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लगाया जाएगा। तो मशीन, हम जो देखते हैं, मैं एक टाइगर देखा, तो जैसे मैं देख रहा हूँ, क्या मशीन वैसे देखेगा क्या? हम एक प्रोजेक्ट करेंगे कि टाइगर आइडेंटिफिकेशन, तो बहुत सारे एनिमल है, मेरा मशीन टाइगर का आइडेंटिफाई कैसे करेगा? क्या वो टाइगर को मैं देख रहा हूँ वैसे देख रहा है? नहीं, वो सिर्फ एज देख रहा है। तो उस डाटा को लेके प्रोसेसिंग करके, जैसे हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है, उस तरह से वो आर्टिफिशियल ब्रेन में प्रोसेसिंग होके फाइनल आउटपुट आएगा, हाँ ये टाइगर है। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट का बहुत डिमांड है। किसका? डीप लर्निंग का, ठीक है। तो डीप लर्निंग में ये जो देख रहे हो ये डायग्राम, ये एक जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसको हमने आर्टिफिशियली इम्प्लीमेंट किया है। एक टाइगर है, ये उसका फेस है, जैसे ये का आंख है, ये कान है, ये टीथ है, ठीक है। जैसे ये उसका लाइक ईयर है, नोज, जो भी है, समझ रहे हो? ये सब न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स। हमारे लोग में बहुत सारा न्यूरॉन्स होता है, ये सब न्यूरॉन्स होता है। ये न्यूरॉन्स सब इसको इनपुट लेंगे, इसको प्रोसेसिंग करेंगे, करके फिर आउटपुट देंगे नेक्स्ट न्यूरॉन को। फिर फाइनली ये न्यूरॉन प्रोसेसिंग करेंगे, करके फिर फाइनली आउटपुट देंगे इसको। फिर ये डिटरमिन करेगा, हाँ ये टाइगर है कि नहीं है। जो एनिमल आपने देखा है वो टाइगर है कि नहीं है, फाइनली आउटपुट में आएगा। फिर से वो बताएगा टाइगर होने का चांस 90% है, और कैट होने का चांस 10% है। तो बोलेगा हाँ टाइगर है। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी का आजकल बहुत ही ज्यादा डिमांड है, डीप लर्निंग का। तो डीप लर्निंग एक बहुत ही मतलब डिमांडेड रिसर्च एरिया भी है आजकल, उसमें बहुत सारा रिसर्च भी चल रहा है। तो डीप लर्निंग इज ए वेरी वाइटल पार्ट ऑफ योर लाइक फुल स्टैक डाटा। एक प्रोजेक्ट जब आप करोगे कोई मतलब डाटा साइंस का, तो ये सब स्टेप्स है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या करने जा रहे हो? हाँ, हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, लाइक लेट्स से लाइक एक आदमी को कोविड होगा कि नहीं होगा, उसका सिम्टम देख के हम बताएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। डाटा कलेक्शन करो भाई, जाओ मेडिकल, जाओ हॉस्पिटल, जाओ डाटा कलेक्ट लाओ कि क्या क्या पैरामीटर होने से कोविड हो रहा है, क्या क्या होने से नहीं हो रहा है। फिर इसको क्लीन करो, उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालो। कि डायबिटीज होने से कोविड का चांस कितना होता है, हार्ट डिजीज होने से कितना होता है, सैनिटाइजेशन यूज ना करने से कितना होता है, मास्क यूज ना करने से कितना होता है। देन आप क्या कर सकते हो, फिर उसको मॉडल बना सकते हो, लाइक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल। देन इसको ट्रेनिंग करके, टेस्टिंग करके आप इसको, अगर आपका एक्यूरेसी सही है, हाँ मेरा मॉडल ठीक से सीखा है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पा रहा है, देन इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप लोग जान पाओगे। एक सेकेंड।
आ रहा है। तो ये जो मैं दिखाया था आप लोगों को डायबिटीज का, ये उसका एक प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट के साथ। आप उसको वेब बेस्ड डेवलपमेंट भी कर सकते हो, क्लास और जैंगो में कर सकते हो। मैं इसको रन कर रहा हूँ, एक बार देखिए। थोड़ा टाइम ले रहा है, आ जाएगा। क्योंकि जो मेन एम आपका क्या है, प्रोजेक्ट। आप इसी चीज पढ़ोगे, आप फुल स्टैक डाटा से बनाओगे क्यों? आप इंडस्ट्री में जब जाओगे काम करोगे क्या? आपका असाइनमेंट दिया जाएगा, भैया ये काम करके दो। इस प्रोजेक्ट के लिए जितना आपका असाइनमेंट दिया जाएगा, ये असाइनमेंट आपको करके देना। ठीक है, एक सेकेंड। देख आ गया। थोड़ा स्लो हो रहा है, बहुत सारा एप्लीकेशन एक्चुअली मैंने ओपन कर लिया था। ये एक प्रोजेक्ट, ये जीए बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है। इसे बहुत सारा मॉडल यूज किया गया है। तो इसमें अगर आप इनपुट दोगे तो बता देगा कि उस आदमी को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। प्रेग्नेंट डेट से 1 टाइम है, ग्लूकोज उसका 100 है, ब्लड प्रेशर उसका 100 है, स्किन थिकनेस उसका 23 है। मतलब डायबिटीज में स्किन थिकनेस बढ़ता है। इंसुलिन 100 है, बॉडी मास इंडेक्स 28 है। डिग्री, मतलब अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो चाइल्ड को डायबिटीज होने का चांस कितना है। एज कितना है, 32 है। तो बताओ उसको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। क्या लिखा है, नो डायबिटीज। तो इसको हमने इंटेलिजेंट बनाया है। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, इंटेलिजेंट बना दिया है। ये देखिए, तो आएंगे, एक एनएलपी का एक काम है, उसको बाद में आएंगे। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि प्रेडिक्ट करके आपको बताएगा कि आपको हार्ट डिजीज होने का चांस कितना है। हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा। हार्ट डिजीज, आप मेल की फीमेल हो, सिगरेट कितना लेते हो भाई, हार्ट स्ट्रोक पहले से हुआ था क्या, अगर ये सब पैरामीटर दोगे तो बता देगा आपको हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा। इसको हमने इंटेलिजेंट बना दिया है। जैसे 4,000 लोगों का डाटा लगा है। और ये भी एक प्रोजेक्ट है, मैं बता रहा था, कोविड, कोविड प्रेडिक्शन। देखिए, ये जीआई बेस्ड है। इसमें हमने सिखाने के लिए 6 एल्गोरिथम यूज किया है। ये सब आप मशीन लर्निंग में पढ़ोगे। 6 एल्गोरिथम, केएनएन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नई बेस, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट, ये सारा चीज यूज किया गया है। तो हमने क्या किया है इसमें कि आप ऐसा सोचो कि यहाँ पर 6 डॉक्टर हैं, 6 डॉक्टर। अच्छा, सब डॉक्टरों का ट्रीटमेंट का तरीका सेम होता है क्या? नहीं। तो एक डॉक्टर का एक्यूरेसी कितना है, 97.52% एक्यूरेटी। तो आप, मुझे ऑपरेशन करना है मेरा हार्ट का, तो मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊंगा, जिसका एक्यूरेसी 97% है या जिसका एक्यूरेसी 30% है? पर 30% तो नहीं जाओगे भाई, ऊपर जाना ही क्या नहीं। तो आप देखोगे, अच्छा अच्छा इसका सक्सेस रेट कितना है, तो ये इतना एक्यूरेट है। ये कितना एक्यूरेट है, अच्छा 96। ये कितना एक्यूरेट है, 95। ये कितना है, 96। ये कितना है, 97। ये कितना है, 97। सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है ना, रैंडम फॉरेस्ट। ये सब ये सब आप से, ये क्या है, देखिए ये सब एक तरीका होता है मशीन को सिखाने के लिए। ये जो हमने इंटेलिजेंट टूल बनाया है, ये सिखा के बनाया है ना, तो सिखाने का तरीका होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इनपुट देंगे, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, ट्रैक ऑफ था, रनिंग नोज था, लॉन्ग डिजीज था, हार्ट डिजीज था, हाइपरटेंशन था, कोविड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आया था, हाँ आया था, कोई एक्सपोज प्लेस को गया था, हाँ
वेयरिंग मास्क, मास्क पहनता था नहीं पहनता था, फीवर हुआ था हाँ हुआ था, मतलब सिम्टम्स है। नॉर्मली कोविड कैसे प्रेडिक्ट होता है, आप स्वाब लेते हो या ब्लड टेस्ट करते हो, हमने एक मॉडल बनाया है तरीका जिससे आप कोविड प्रेडिक्ट कर सकते हो सिम्टम्स से, ठीक है। सोर थ्रोट था हाँ, अस्थमा है हाँ, हेडेक हुआ था, डायबिटीज भी है, बाहर घूमने गया था हाँ, लार्ज गैदरिंग अटेंड किया था हाँ, क्या उसका फैमिली एक्सप्लोर प्लेस में गया था हाँ, सैनिटाइजेशन कर रहा था, सैनिटाइजेशन नहीं कर रहा था, मतलब हाथ वाथ नहीं धो रहा था ठीक से, तो सबमिट करो। क्या लिख रहा है, यू मे सफर फ्रॉम कोविड-19, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज हटा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ऐसे नहीं था, जीरो, ट्राई कॉफ नहीं था, ठीक है, लॉन्ग डिजीज नहीं था, हार्ट डिजीज नहीं था, कॉन्टैक्ट विद कोविड पर्सन नहीं था, विजिटेड एक्सपोर्ट प्लेसेस नहीं, फीवर नहीं है, अस्थमा नहीं है, डायबिटीज नहीं है, आपने ट्रैवल किया था नहीं किया था, गैदरिंग में गया था नहीं गया था, क्या एक्सपोज्ड प्लेस में गया था नहीं गया था, सैनिटाइजेशन कर रहा था हाँ कर रहा था, मास्क पहन रहा था हाँ मास्क पहन रहा था। अब देखो क्या लिख रहा है, यू आर ओके, समझ रहे हो। तो वो किसे डिसाइड कर रहा है, हम हमने उसको इंटेलिजेंट बनाया है, हमने उसको इंटेलिजेंट बना दिया है, तो इट्स इंटेलिजेंट सिस्टम। इसको और भी इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है डिफरेंट टेक्निक। तो इसमें जो डाटा था इस प्रोजेक्ट के लिए, जो 4-5 हज़ार डाटा था, लोगों का डाटा हमने कलेक्ट किया है, जो डाटा कलेक्ट किया था वो डाटा सही नहीं था, कुछ गलत भी था, तो उसको कैसे प्रोसेसिंग किया, ठीक है, कैसे उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना है, मुझे जानना है। अच्छा जो लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उनको कोविड होने का चांस कितना है, जिन लोगों को फीवर है उनको कोविड होने का चांस कितना है, समझ रहे हो। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इसको। तो कौन सा पैरामीटर का इंपोर्टेंस कितना है, फीवर का कितना इंपोर्टेंस है कोविड होने के लिए, अस्थमा का कितना है नहीं, तो एक वो डाटा एनालिस्ट का काम। तो हमने क्या किया, डाटा कलेक्ट से लेकर प्री प्रोसेसिंग सब किया, फिर उसको फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए वे फ्यूचर प्रेडिक्शन कर पा रहा है, तो आप ये सब कर सकते हैं। तो फुल एंड टू एंड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है। तो ये एक कौन सा टॉपिक गया, लाइक मैं दिखा आपको कैसे प्रेडिक्शन कर रहे हो। देन लाइक जो नेक्स्ट है एनएलपी। देखिए एनएलपी क्या होता है आजकल, देखिए ये चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो, वो भी तो एनएलपी का एक एप्लीकेशन है। एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी फुल स्टैक डाटा साइंस का एक पार्ट है। तो आप बोलो सर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है, जैसे मैं उड़िया में बोल सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश ये सब क्या है नेचुरल लैंग्वेज है, उड़िया मेरा नेचुरल लैंग्वेज है, हिंदी मेरा नेचुरल लैंग्वेज है, क्या एक मशीन मेरा लैंग्वेज समझ सकता है, मैं फैन से बात करूंगा, अच्छा फैन थोड़ा स्लो हो जाओ, अरे वो तो मशीन है, वो कैसे समझेगा। अगर मैं अभी आपको जापानीज में बात करूंगा, क्या आप लोग समझ सकते हो, नहीं, तो आपको जापानीज में समझने के लिए आपको जापानीज सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आपको जापानीज सिखाना है, एक मशीन को कैसे सिखाएंगे, एक मशीन को हम ओडिया कैसे सिखाएंगे, ताकि मैं इसको ओडिया में बात करूंगा, जैसे सोफिया जो रोबोट है, सोफिया के साथ बात करोगे एक लैंग्वेज में तो वो आंसर देगा, तो मशीन कैसे, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ के फिर उसका रिप्लाई जनरेट करके वो देगा। आजकल चल रहा है जेनरेटिव एआई। तो चैट जीपीटी है वो क्या है, जेनरेटिव, वो दिखाऊंगा मैं। तो एनएलपी एक फील्ड है जो कि यूज होता है, एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है, जैसे कि एक मशीन कैन अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज एंड कैन इंटरेक्ट। एक मशीन को अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज को समझा सके और वो फिर समझ के उसका रेस्पॉन्स दे सके, ये होता है नेचुरल लैंग्वेज। आजकल एग्जाम्पल चैट जीपीटी इसका बेहतर एग्जाम्पल है। तो कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस, इट्स इंटरेक्शन बिटवीन ए ह्यूमन एंड ए मशीन। एक ह्यूमन के साथ मशीन कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
ये इतना आसान नहीं है, बट इट्स वेरी यूजफुल एंड आजकल बहुत यूज हो रहा है। कुछ एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, चैटबॉट्स। आप लोग चैटबॉट भी यूज करते हो। ये काम करने के लिए वन दबाइए, ये काम करने के लिए टू दबाइए ऐसा आता है ना। टेक समराइजेशन। जैसे एक न्यूज पेपर आया है, मैं बोलूँगा मेरा एक प्रोजेक्ट है कि न्यूज में जो जो हेडलाइंस है वो समराइज करके मुझे देगा। मैं इसको इनपुट दिया न्यूज़पेपर, तो मुझे समराइज करके दे दिया, हाँ ये सब हेडलाइंस। ये भी एनएलपी का काम है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। मैं तो बोला स्पीच बोलूंगा मैं एक मशीन के साथ, हिंदी में बोला तो हिंदी का वो वर्ड लेके समझ के वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, स्पीच को टेक्स्ट में, फिर समझेगा। स्पीच रिकॉग्निशन है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, चैट जीपीटी जैसे बोला मैंने। चैट जीपीटी का जेनरेटिव प्रिटेंट ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जेनरेटिव प्रिटेंट ट्रांसफॉर्मर, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जो ओपन एआई का प्रोडक्ट है, तो वो क्या है? एक जनरेटिव एआई है। उससे आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपको आंसर दे सकता है। नॉट लाइक गूगल। ये क्या करता है? जनरेट कर रहा है, लग रहा है कि वो वहां से कुछ लिख के दे रहा है। इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ एन सेंटीमेंट एनालिसिस। जैसे आपने कोई ट्वीट किया है, उस ट्वीट में हजारों लोगों ने ट्वीट किया है, तो हम जानना चाहते हैं कि वो अच्छा ट्वीट है कि बैड ट्वीट है, जैसे गुड ट्वीट और बैड ट्वीट। लोगों का जो आंसर है उससे, ठीक है। ट्विटर जानना चाहता है कि ये जो ट्वीट किया है ये ऑथेंटिकली नहीं है, या कुछ भलगर है, या लोगों को सेंटिमेंट बहुत कर रहा है, नहीं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज से और एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। एक लैंग्वेज से और एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। स्पैम डिटेक्शन। स्पैम, एक मेल आया है, वो स्पैम है कि नहीं है। एग्जाम्पल, हमने एक काम किया था स्पैम डिटेक्शन का। वो एनएलपी का एक एप्लीकेशन है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पैम डिटेक्शन। स्पैम भी एक एनएलपी का एप्लीकेशन है। तो हमने एक इंटेलिजेंट मॉडल बनाया है। अगर हमको उसको मैसेज देंगे, यहाँ पर डाटा न्यूमेरिक नहीं है, मैसेज में लिखा हेलो रंजन, तो क्या देगा मुझे? काम है क्या? आप लोगों को क्या लग रहा है? प्लीज रिप्लाई करो। महेश्वर, प्रज्ञा, प्रयास, रुद्रा, प्लीज रिप्लाई करो आप सब। स्वागत, सुमित्रा, स्वाति। देखिए, ये स्पैम नहीं है। हेलो तो कोई बोल सकता है, क्या लिख रहा है? स्पैम नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा चेंज करूं, क्या लिखूं? यू, वन, 1000, डॉलर, आपका लॉटरी लग गया है, ऐसा आता है ना, तो ये क्या है? स्पैम है, लिखा है स्पैम। तो इसका कैसे पता है? ठीक, बिकॉज हमने उसको इंटेलिजेंट बना दिया है, तो वो डिसीजन ले पा रहा है। जैसे जीमेल डिसीजन ले रहा है, जैसा कि मोबाइल में आ रहा है, तो अगर मोबाइल में वो टूल से वो डिसीजन ले पा रहे हैं नहीं। तो ये एनएलपी का कुछ एप्लीकेशन है। मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ चैट जीपीटी, फिर आप लोग देखना। चैट जीपीटी कैसे यूज कर रहे हैं देखो। फिर हम आएंगे, बाकी जो था, दो कॉन्सेप्ट था, एसक्यूएल, पावर बीआई, देखो, और एज़्योर। तो मैंने गूगल ओपन किया, मैं चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ। चैट जीपीटी, तो हमने जो यूज करे वो फ्री वाला वर्जन है, क्योंकि पेमेंट वाला वर्जन जो है उसके लिए पैसा लगेगा। ये चैट जीपीटी है। तो आजकल आप लोगों को स्मार्टली काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम कैसे कम टाइम में करेंगे, उसके लिए सब एआई टूल्स का यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल यूजर की तरह जैसे कर रहे थे वैसा का नहीं करना है, ठीक है। और नॉर्मली जैसे हो रहा है था, आप कोई, आपको आपका बॉस काम दिया, तो आप
उसको एक दिन लगा दिया, कोई आदमी 1 घंटा में कर दिया, तो वहां पर आपका रेपुटेशन क्या रहेगा? ठीक है। तो लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजिंग वेरी फास्ट, माय डियर स्टूडेंट। अगर आप अपडेट नहीं होगे मार्केट से पूरा आउट हो जाओगे। ठीक है। तो ये मैंडेटरी चीज है। जैसे कंप्यूटर एक मैंडेटरी आज हो गया है, लेकिन पहले नहीं था, 90s में नहीं था। जब 90s में कंप्यूटर आया था, तो उस टाइम में लोग बोल रहे थे कि कंप्यूटर आएगा तो जॉब खा जाएगा हमारा, 10 लोगों का काम एक कर देगा। तो ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है, जॉब बहुत बढ़ गया है। सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिफरेंट जॉब आ रहा है, लेकिन मैंडेटरी क्या है कि जो भी प्रोफेशन हो, कंप्यूटर नॉलेज इज ए मस्ट। उसी तरह से आजकल एआई नॉलेज इज ए मस्ट। अगर नहीं जानते हो, आगे आगे जाकर देखो, एवरी कंपनी विल आस्क यू, डू यू हैव आइडिया अबाउट एआई और एआई टूल? नो, रिजेक्टेड। तो उससे पहले हम ये सारा चीज सीख जाना चाहिए। नया तरह का जॉब आएगा, ट्रेडिशनल जैसे सॉफ्टवेयर में जॉब आ रहा था, न्यू टाइप्स ऑफ जॉब विल कम। सपोज आई आस्क यू, हेलो, तो वो क्या बोल रहे हैं देखिए, हेलो, मतलब क्या बोल रहे हैं? लग रहा है कि वहां पर कोई बैठा है मेरा आंसर दे रहा है। ओके, आई एम रेडी। कैन यू हेल्प मी इन लर्निंग पाइथन? क्या आप मुझे पाइथन लर्न करने में हेल्प कर सकते हो? बोल रहे हाँ, यस सर। तो ये जो है वो जनरेटिव है, जनरेटिव है, जनरेटिव, वो जनरेट कर रहा है। प्लीज कंपेयर बिटवीन पाइथन एंड लेट्स से जावा। तो वो बना रहा है, वो कोई लिख नहीं दे रहा है, वो बना देख रहे हो? लग रहा है कोई वहां कोई लिख रहा है। दिस इज जनरेटिव। ये एक एप्लीकेशन है एनएलपी का। तो अनदर 10 मिनट्स, 5 to 10 minutes विल टेक। तो हाँ, पेशेंस। तो आप लोग ने इतना देर पेशेंस से बैठा है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं बोला अच्छा, मुझे एक असाइनमेंट दिया है कि अच्छा एक काम करो, एक स्टोरी लिख के लाना है, एक नया स्टोरी लिख के लाना है, बना के खुद से। तो मैं क्या करूँ? लिखना पड़ेगा भाई, चैट जीपीटी है देखो। प्लीज क्रिएट ए स्टोरी फॉर मी इन विच द कैरेक्टर आर डॉग, कॉमा, टाइगर एंड काव। तो वो मेरे लिए बनाएगा आज। देख रहे हो, तो स्टोरी बना रहे हैं मेरे लिए। तो आप बैठ के सोच के लिखोगे तो वो तो बना दिया। तो स्टोरी बना रहा है भाई, फिल्म बना देगा, मूवी, मूवी का स्क्रिप्ट बना देगा। मुझे ये पसंद नहीं आया, नहीं नहीं, ये स्टोरी पसंद नहीं आया, यहाँ पर रीजनरेट है। और एक बार करो, एक नया स्टोरी बनाओ। वो एक नया स्टोरी बना रहा है, ऐसा टाइटल भी दे रहा है। तो नहीं नहीं, काम करो, इस स्टोरी को मुझे ओडिया में चाहिए। प्लीज क्रिएट ए स्टोरी फॉर मी इन ओडिया। अद्भुत मेरा। तो वो देख रहे हो, वो ओडिया में बना रहा है, सोच रहे हो? डू थिंक? तो ये डे टू डे लाइफ में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज, ये देखा आपने कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, उसे चलने दो। तो और क्या चाहिए हमें? देखिए, एसक्यूएल चाहिए। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर कोडी लैंग्वेज, जो कि डाटाबेस यूज होता है। आप जैसे कि लेट्स से आपका एसबीआई में अकाउंट है, लाखों लोग अकाउंट है, आपने गया पैसा उठाया, जो भी किया, वो डाटा कहाँ रहता है? सर्वर में, कहाँ पर? डाटाबेस में नहीं। डाटाबेस मतलब वो हार्ड डिस्क में एक जगह होता है जहाँ पर डाटा रहता है परमानेंट। तो डाटा साइंटिस्ट को, डाटा एनालिस्ट को एसक्यूएल के बारे में जानना पड़ेगा।
एसक्यूएल क्यू ना, उस डाटा से क्या निकालना है, मुझे उस डाटा से एक काम कीजिए, उस जो जो डाटाबेस है वो, अच्छा कौन कौन सा कस्टमर 10,000 से ज्यादा लोन लिए हैं प्लीज। अच्छा इस बार कौन कौन लोग क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर रहे हैं भुवनेश्वर में, सब लोगों का डाटा दीजिए। समझ रहे हो? तो डाटाबेस जो होता है, डाटाबेस यूज होता है लाइक ओरेकल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ये सब एसक्यूएल यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है? तो कोई ये कहाँ पर यूज होता है ना, बैकएंड में, फ्रंट एंड बैकएंड। आपने फेसबुक ओपन किया, लॉगिन किया, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन कर दिया, वो कहाँ गया, सर्वर में गया। सर्वर कहाँ जाएगा, डाटाबेस जाएगा, चेक होगा, मैचिंग होगा, फिर अगर आप वैलिड यूजर हो फिर आएगा रिस्पॉन्स। क्या आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो जॉब के लिए, फिलअप कर दिया डाटा, सबमिट कर लिया, तो कहाँ जाएगा वो, डाटाबेस में जाएगा। आप लोगों ने जैसे गूगल फॉर्म फिलअप किया था हमारा, वो कहाँ पर है, वो भी जाके गूगल डाटाबेस में रहता है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डाटा लाइक डाटा एनालिस्ट, जो डाटा एनालिस्ट है, इसको भी एसक्यूएल भी सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करके उस डाटाबेस में जो डाटा है उसको कैसे यूजफुल डाटा एक्सट्रैक्ट करके यूज करना है, वो भी जानना चाहिए। फिर क्या है, पावर बीआई। देखिए पावर बीआई एक बिजनेस एनालिटिक टूल है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, which enables the users to visualize and analyze data। विजुअलाइज करना है आपको डाटा को, मतलब डाटा दिया गया है, बहुत सारा डाटा दिया गया है, लाखों में डाटा दिया गया है, जैसे 50 कॉलम है, 100 कॉलम है, बोला गया है उसको भाई एक पेज में रिप्रेजेंट करो, एक पेज में। मैं डिसीजन लूंगा, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं मुझे डिसीजन लेना है कि भाई कौन सा एरिया में ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, कौन सा में। लास्ट 10 साल का कंपनी का डाटा है, यूज करो भाई, मुझे इन्फो चाहिए। तो ये पावर बीआई जो है वो डैशबोर्ड बनाता है। ठीक है? तो डिसीजन लेने के लिए वो यूज होता है, मॉडलिंग, विजुअलाइजेशन। एग्जाम्पल वो समझ पाओगे। तो पावर बीआई अलाउज यू टू इंपोर्ट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक एक्सेल, स्प्रेडशीट हो, डाटाबेस हो, क्लाउड हो, जहां से भी लाके डाटा ला सकता है, और उसको देखो प्रेजेंटेशन देखो, एक प्रेजेंटेशन देखो, देख रहे हो प्रेजेंटेशन, ये एक पावर बीआई का प्रेजेंटेशन है। मतलब सोचो कि कितना डाटा होगा, कंट्री वाइज और जो भी हो, स्टेट वाइज, ये अमेरिका का डाटा है, तो पूरा सारा एक ही पेज में सारा चीजें अवेलेबल है मेरे पास। कैलिफोर्निया में क्या हुआ था, कितना केस हुआ था कोविड का, कितना डेट हुआ था। ठीक है? समझ रहे हो? केस फैटिलिटी, कंफर्म केस कितना है, ये सारा दिखा रहा है एक जगह पर। समझ रहे हो? अगर आप डाटा देखोगे एक्सेल शीट में, वो समझ में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये समझ में आ गया कि पावर बीआई का मतलब क्या है, ना पावर है। तो इसको भी हम सीखेंगे। फिर ये और एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, एक सेल का है, सेल परचेज का, कितना सेल हुआ है, ऑनलाइन के थ्रू कितना हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू कितना हुआ है, स्टोर के लोग, तो हमारा स्टोर को आके लोग कितना खरीदे हैं, आउटलेट पे कितना खरीदे हैं। समझ रहे हो? तो कौन सी जगह ज्यादा सेल हो रहा है, तो किसके ऊपर फोकस करेंगे, सारा चीज एक ही जगह पर डैशबोर्ड आ गया है। तो मुझे डिसीजन लेने में आसान होगा ना, थोड़ी ना मैं वो डाटा देखूंगा जो न्यूमरिक में होगा, इतना डाटा देख के समझ नहीं पाऊंगा। मुझे, मैं जो कंपनी का डिसीजन मेकिंग ओनर हूँ या डायरेक्टर हूँ, तो मैंने आपको जॉब दिया, मुझे इस तरह चाहिए डाटा, तो आप डाटा को यूज करके मुझे दे दिया, देखिए सर ये चीज है, मेडिसिन ले गया, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अच्छा यहाँ पर जो टोटल सेल हुआ है ऑनलाइन में, अच्छा ऑनलाइन में ज्यादा हो रहा है, नहीं ठीक है मेडिसिन लेंगे, तो ऑनलाइन सेल ज्यादा लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम प्लान करें। स्टोर में आ रहे हैं, आउटलेट पे इतना नहीं है, स्टोर में भी आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में ज्यादा सेल हो रहा है। तो ये जो चीज है, तो आजकल बिजनेस करने का तरीका, सब लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। फिर आगे आजियो। आजियो क्या है ना, देखिए आजकल क्लाउड, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है। आजकल सब लोग डाटा कहाँ रख रहे हैं भाई, क्लाउड में रख रहे हैं। क्लाउड क्या है, बादल नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देना, आप लोग समझ पाओगे। आजकल का कंप्यूटर कौन है, एडब्ल्यूएस है, जीसीपी है, लेट्स से। हाँ श्योर श्योर, आप लोग सबको ये पीपीटी मिल जाएगा जो लोग ग्रुप में हो।
और आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। ठीक है, विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब। देखिए, आजियोर आजकल क्लाउड भी एक एसेंशियल प्लाट है। मैं लेट से छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट से मुझे अभी लेट से जाना है, लेट से भुवनेश्वर से पुरी जाना है, तो मैं क्या करूंगा? हम लेट से 10 जन लोग हैं, क्या हम एक गाड़ी बड़ा सा गाड़ी खरीदेंगे, या हम गाड़ी खरीदेंगे या भाड़े में ले लेंगे? हम कहीं दूर से आए हैं, लेट से भुवनेश्वर से हम पुरी जाना है, तो थोड़ी परचेज व्हीकल, नो, हम भाड़े में ले सकते हैं। आप भुवनेश्वर गांव से भुवनेश्वर आया हो, आपका नौकरी लग गया, तो क्या आप घर खरीदोगे या घर भाड़े में लोगे अभी? बोल रहे हो? तो अगर आपके पास, मैं एक कंपनी खोलूंगा, रेंट, यस, मैं अभी एक कंपनी खोलूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना रिसोर्स नहीं है, मुझे मेरे पास जैसे 20 एम्प्लॉई हैं, उनको इतना हाई फाई रिसोर्स देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सब लाइसेंस और सॉफ्टवेयर, सारा चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा चीज में पॉसिबल नहीं है मेरे पास। स्टोरेज इतना खरीदना हार्ड डिस्क से, और मेरे पास पॉसिबल नहीं है, मेरे पे पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? भाड़े पे लूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, सिंपली लॉग इन करना है क्लाउड में। मैं लॉग इन कर लिया। अब मैं उनका जो है, जो मैं एजर माइक्रोसॉफ्ट का है, अमेजन का एडब्ल्यूएस है, गूगल का जीसीपी है, तो मैं उनका जो प्लेटफॉर्म है मैं उसको यूज करूंगा। वो अनलिमिटेड है, मैं जितना चाहे हार्ड डिस्क यूज करूँ, मेमोरी, जो जो सॉफ्टवेयर मेरे चाहिए, जितना टाइम के लिए चाहिए, सब भाड़े में ले सकता हूँ। समझ रहे हो? तो अभी मुझे कोई चीज जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम रन करने के लिए 2 दिन लग रहा है, क्योंकि मेरा मशीन के पास वो कैपेसिटी नहीं है। तो क्या करेंगे? मैं आजीव यूज कर सकता हूँ, क्लाउड को यूज कर सकता हूँ, तो उनका मशीन में मैं रन करूंगा। तो बोला, मुझे ये रिसोर्स चाहिए, इतना फैसिलिटी चाहिए, इतना प्रोसेसर चाहिए, इतना स्पीड चाहिए, इतना रैम चाहिए, ठीक है भाई ले लो। इतना पैसा चाहिए, कितना टाइम के लिए? 6 घंटे के लिए चाहिए, ठीक, ले लो, तो दे दो, काम करो। तो आजकल सब, मोस्ट ऑफ द 90% MNCs आर डिप्लॉइंग देयर एप्लीकेशंस ऑन क्लाउड। गूगल सेट को होस्ट करना रखना है, क्लाउड, क्लाउड इज देयर। क्यों मैं इतना खरीदूंगा खुद का? ठीक है, तो आप एक मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करोगे एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन थ्रू, तो क्लाउड यूज कर सकते हो भी, ये वो फैसिलिटी आपको देगा। जैसे हम घर भाड़ा ले रहे हैं ना, जो लोग आदमी घर बना दिया है, 25 घर, 4-5 स्टोरेज का घर बनाया है, भाड़ा दे रहा है। आपको क्या चाहिए? एसी रूम चाहिए तो इतना पैसा पड़ेगा, नॉन एसी, ठीक है, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम, आपको क्या चाहिए? वैसा ही चीज है। ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है? मशीन लर्निंग मॉडल को भी आप ये कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। ये ऑफर्स प्रीबिल्ट एआई मॉडल, मैंने से पहले से बनाया गया एआई मॉडल भी आपको देता है, लाइक विजन, स्पीच, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। एग्जिस्टिंग मॉडल जो क्लाउड में आप इसको यूज भी कर सकते हो, बॉट सर्विस भी यूज कर सकते हो, तो ये सारा चीज आप यूज कर सकते हो। गॉट इट? तो माय पॉइंट इज, तो ये सारा चीज अगर आप, तो दिस इज कॉल्ड एज फुल स्टैक डाटा साइंस। आइडिया पॉइंट, तो मैंने स्टार्टिंग से आपको वो बताया था, क्या क्या सब चीज सीखना है आपको। वो भी बहुत है, बट नथिंग लाइक, आप यू हैव टू लर्न पाइथन, देन डाटा एनालिसिस करना चाहिए। You can use different Python library packages like जो है आपका pandas और like that. Even you can go SQL, even go for Power BI, Tableau भी है। ठीक है, Power BI, Tableau एक ही काम का है, तो जिसमें एक ही सीखने से जो आप एक सीखोगे तो that's enough. Then machine learning, deep learning, NLP, मशीन लर्निंग क्या है? एक मशीन को सिखाएंगे। डीप लर्निंग क्या है? आर्टिफिशियल ब्रेन लगाएंगे मशीन में। एनएलपी क्या है? एक नॉर्मल, एक ह्यूमन और मशीन के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, एक मशीन कैसे ह्यूमन का लैंग्वेज में समझेगा।
चैट जीपीटी भी उसी का एप्लीकेशन है। एसक्यूएल डाटाबेस, पावर बीआई, किसे एक रॉ डाटा को आप क्या कर रहे हो, पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्राफिकली, मतलब एक शीट में सारा इंफॉर्मेशन वहां पर आ रहा है, ग्राफिकल देख के मैं एक ही पेज देख के सारा डिसीजन ले लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक। एज़्योर क्लाउड सर्विस, देन हाउ टू इफेक्टिवली यूज चैट जीपीटी। देखिए चैट जीपीटी को यूज करने का भी तरीका है। सब लोग बोले कि हाँ मैं यूज कर लिया, मैं सब जानता हूँ ना। देयर डिफरेंट वेज, डिफरेंट टेक्निक्स टू यूज चैट जीपीटी। तो ये सारा चीज आपका है। तो हमने कुछ कुछ इसको डिस्कस किया, थोड़ा मैं पाइथन के बारे में बताया, कुछ डाटा एनालिसिस क्या होता है, डाटा साइंटिस्ट डिफरेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है। देखिए छोटा सेशन में मैं चाह रहा था कि आपके माइंड में आया, हाँ ठीक है भाई, ये अभी का डिमांडेड टेक्नोलॉजी है, अब चल रहा है मार्केट में और इसी का ही चलेगा। सारा ये सारा चीज ज्यादा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में। तो आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा और इंडस्ट्री में बहुत ही डिमांड है। ठीक है, हर जगह जहां पर जाओ, मेडिकल सेक्टर जाओ, जहां पर जाओ, ये मैंडेटरी। सब लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो डाटा है उसको कैसे हम यूटिलाइज करके अच्छे से बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, उससे ठीक से डिसीजन ले सकें। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो आप लोगों ने 1.5 आवर बैठा पेशेंस में, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हमारे इतना पेशेंस रहना भी जरूरी है लाइफ में, पेशेंस। ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग, आई होप कि मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो काम में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये सारा ट्रेनिंग देते हैं, ये सारा जो ट्रेनिंग होता है हम देते हैं। एंड वी आर इन भुवनेश्वर, फंडिंग स्क्वायर। और इस एरिया में हम प्रोजेक्ट्स भी काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टीम भी है, काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में। तो वी प्रोवाइड बोथ लाइक इंटर्नशिप भी देते हैं, कोर्स भी देते हैं, प्रोजेक्ट्स भी देते हैं, टेस्टिंग गाइडेंस देते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम भी कर रहे हैं। बहुत वंडरफुल एरिया है। एक बार आपको अगर इसमें आप घुस गए ना, तो मतलब मजा आ जाएगा। ठीक है, डाटा के साथ खेलोगे आप। ठीक है, बट यू नीड टू वर्क विद डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डाटा ताकि आपको ये आए। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट। तो कल हम फिर मिलेंगे। कल टुमारो द सेशन इज फॉर, डोंट मिस टू अटेंड, पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन। जिसमें वो एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, कैसे बन सकता है, उसका क्या डिमांड है। ठीक है, तो हम ग्रेजुअली इस तरह का चीज हम लाते ही रहेंगे, नया नया चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाते रहेंगे। ठीक है, फिर आगे जाकर फिर और कोई नया टेक्नोलॉजी भी करेंगे। ठीक है। तो आप लोग इसे ये अपलोड हो जाएगा, सबको सबका ये मटेरियल भी है, सबको मिल जाएगा। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। So thanks to all of you. Thanks to all of you for your patience. Huh? Thanks to all of you. So tomorrow again we'll meet at 7:30. But till then, bye. Take care. Good night.